Hello and welcome to Key Study Point. दोस्तों, we will continue the series of MCQs questions of UPSC English syllabus. So in this video, we'll discuss a few more questions. So let's get started and look into the first question. Who is the protagonist of the Power and the Glory? Power and the Glory जो वर्क है उसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? ऑप्शंस आर पुलिस लेफ्टिनेंट, पैड्रेजोस, द विस्की प्रिस्ट, द मैस्टिजो. So I am sure that if you have read that summary of this novel, The Power and the Glory by Graham Greene, तो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो विस्की प्रिस्ट है, एक द विस्की प्रिस्ट. राइट आंसर यहाँ ऑप्शन सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द नोवेल? स्मॉल टाउन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द स्टेट्स ऑफ टबास्को मैक्सिको, चर्च इन स्पेन, ए मोनेस्ट्री इन द इटली. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो इसकी सेटिंग है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिको में, स्टेट ऑफ टबास्को, टबास्को मैक्सिको. यहाँ ये भी नोबेल की जो बात की है, पावर एंड द ग्लोरी, ये कुछ क्वेश्चंस द पावर एंड द ग्लोरी से लिए गए. तो इफ देर इज नो मेंशन, नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नोबेल, तो आपको इसको समझना है द पावर एंड द ग्लोरी. ठीक है. मैक्सिको एक स्टेट में है जहाँ रिलीजन से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, उसी की एक स्टोरी है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What significant event shaped the religious atmosphere in Mexico during the time of the novel? अगेन द जो पावर एंड द ग्लोरी नोवेल, उसी की बात हो रही है. द मैक्सिकन रिवोल्यूशन, क्रिस्टेरो वॉर, द स्पेनिश इंक्विजिशन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैथोलिक स्कूल्स. तो क्रिस्टेरो वार की बात है यहाँ, ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द प्रीस्ट इज ऑन द रन? प्रिस्ट जो है, जो विस्की प्रिस्ट जिसको बोला जाता है, वो मतलब भाग रहा है. ठीक है. जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं मैक्सिको की, उस स्टेट की, उनसे. तो उसका रीजन क्या है, क्यों भाग रहा है? ही कमिटेड ए क्राइम इन मैक्सिको, ही रिफ्यूज टू रेनाउंस हिज फेथ एंड कंटिन्यू हिज pastoral duties, he is being pursued for political reasons, he is trying to escape from the army. तो बी यहाँ करेक्ट आंसर है. he refused to renounce his faith and continue his pastoral duties. ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. और ये जो इस तरह की स्टोरी है, उसी के बेस पे ये नोवेल काफी पॉपुलर हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What personal mistake does the whiskey priest struggle with during the novel? He had an affair with a lieutenant's wife. He fathered a child in his parish. He betrayed his faith publicly. He denied the sacrifice of the mass. तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है. जो इसकी मिस्टेक होती है, जिससे ये समस्या फेस करता है विस्की प्रिस्ट, ही फादर्ड ए चाइल्ड इन हिज पेरिस. तो ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु इज द पुलिस लेफ्टिनेंट इन द नोवेल? ऑप्शंस हैं. ए मैन हु इज morally corrupt and seeks power, a loyal Catholic priest, a man who is morally irreproachable but relentless in his pursuit of priest, a member of revolutionary group. ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What action does the whiskey priest take when he meets his daughter? He confesses his sin to her. He feels deep love for her and wants to save her from damnation. He abandons her immediately. He reveals his identity to her. तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है. He feels deep love for her and wants to save her from damnation. Next question. How does the lieutenant eventually view the whiskey priest? Again, we are discussing about the questions from the Power and the Glory. Okay. How does the lieutenant eventually view the whiskey priest? A dangerous criminal with indifference, as a man he admires but he still believes should be executed, as a fellow believer. Option C is the correct answer. As a man he admires but still believes that that person should be executed. So option C is the correct answer here. And next question. What is the final fate of the whiskey priest? This is again a very important question. He escapes to the United States. He is executed by the lieutenant. He dies from illness after being rescued by Protestant landowners. He finds peace and returns to his parish. So C option is the correct answer. He dies from illness after being rescued by Protestant landowners. वो खुद से ही मर जाता है.
ठीक है, विस्की प्रिस्ट जैसे यहाँ इसका नाम सजेस्ट किया गया है, तो ऐसे कुछ इनपुट्स हैं नोवेल में कि वो थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करता है और जिस वजह से उसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बीमार होता है और वो मर जाता है खुद ही। ठीक है, इन द फाइनल चैप्टर व्हाट हैपेंस विद द न्यू प्रिस्ट, न्यू प्रिस्ट के साथ क्या होता है लास्ट चैप्टर में? ही इज कैप्चर्ड बाय द लेफ्टिनेंट, he flees the country, a faithful Catholic woman agrees to harbor him, he dies on his way to the capital. Option C is the correct answer, a faithful Catholic woman agrees to harbor him. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो वर्क है उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसकी थीम क्या है इस वर्क की? फील्डिंग का वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लव एंड द फ्रेंडशिप आई थिंक 1954 में पब्लिश हुआ था, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट नॉवेल है ये। You should read the summary of this novel. If you haven't read, then you can watch these questions and make point of these questions. What is the primary theme of Lord of the Flies? अच्छा, आप इन नोट्स लेना चाहते हैं यूपीएचएससी इंग्लिश के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा या आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। 350 में आपको पीडीएफ मिल जाएगा कंप्लीट सिलेबस का यूपीएचएससी इंग्लिश का। उसके बारे में आप अधिक डिटेल जानना चाहते हैं, नोट्स कैसे हैं, किस तरह के हैं, कैसे हेल्पफुल होंगे, तो चैनल पे एक जो हमारा डैशबोर्ड है चैनल का, वहाँ वीडियो है, आप उसको चेकआउट कीजिए और उसके बाद यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी थीम? लव एंड फ्रेंडशिप, morality, leadership and the tension between civility and chaos, the rise of of democracy, the power of technology. So option B is the correct answer. When it comes to this novel Lord of the Flies, it deals with morality, leadership and the tension between civility and chaos. uh, Next question, what inspired William Golding to write Lord of the Flies? किस चीज ने गोल्डिंग को इंस्पायर किया था इस नॉवेल को लिखने के लिए? हिज एक्सपीरियंस इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द चिल्ड्रंस एडवेंचर नोवेल द कोरल आइलैंड, हिज लव फॉर माइथोलॉजी, हिज ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। सो ऑप्शन भी करेक्ट है, कोरल आइलैंड पे बेस्ड है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नेट एंड सम स्टेट सेट एग्जाम एज वेल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नोवेल। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, जैसे इंस्पायर्ड किससे हुए थे विलियम गोल्डिंग जब ये नोवेल लिखा, या लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किस नोवेल पे या किस वर्क पे बेस्ड है, तो द कोरल आइलैंड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the title Lord of the Flies refer to? A symbol of innocence, a literal translation of Beelzebub, the biblical demon, the god of the island, religious figure in the story. So option B is the correct answer, a literal translation of Beelzebub, a biblical demon. Beelzebub का नाम तो आपने सुना होगा, सेटन सेटनिक करेक्टर है। लॉर्ड ऑफ इसमें पैराडाइज लॉस्ट में भी इसका डिस्कशन है, और जब हम क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स देखते हैं डॉक्टर फॉस्टस, वहाँ भी इसका जिक्र आता है। बाकी बहुत सारे वर्क्स में जो बाकी राइटर हुए हैं बाद में, उन्होंने भी काफ़ी इस सैटेनिक करेक्टर को यूज़ किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज राफ्स फर्स्ट एक्शन व्हेन ही गैदर्स द बॉयज टुगेदर ऑन द आइलैंड? Options are, he organizes a hunt, he establishes authority using the conch shell, he builds a shelter, he calls for help through a signal fire। तो फर्स्ट एक्शन की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि ये सभी एक्शन वो करते हैं, बट फर्स्ट एक्शन की जब बात होगी तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, he establishes authority using the conch shell। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, what is the name of the character who often has an imaginary dialogue with the Lord of the Flies? जैक, राफ, इगी, साइमन। साइमन यहाँ करेक्ट आंसर है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस करेक्टर का नाम जो इमेजिनरी डायलॉग करता है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज के साथ, तो वो साइमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज साइमन डाई इन द नोवेल? साइमन की मृत्यु कैसे होती है? ही इज अटैक्ड बाय जैक्स ट्राइब इन ए फ्रेंजिड स्टेट, mistaken for the beast, he dies from a fatal illness, he draws while swimming, he drowns while swimming, he is killed by Ralph in a moment of rage। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ, he is attacked by Jack's tribe
इन ए फ्रेंजीड स्टेट मिस्टेकन फॉर द बीस्ट, इसको बीस्ट समझ के मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू पिगी इन द नोवेल। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ठीक है। तो पिगी को क्या होता है, ही एस्केप्स विद राफ, ही इज किल्ड बाय फॉलिंग boulder dropped by Roger, he becomes the leader of the tribe, he is rescued by a passing ship। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, he is killed by falling a boulder dropped by Roger, ठीक है। पीकी भी मारा जाता है। What symbolize the loss of order and civilization on the island? The conch shell breaking, the signal fire going out, the creation of Lord of Lies, boys painted faces, conch of shell breaking, ठीक है। ये लॉस ऑफ ऑर्डर एंड सिविलाइजेशन को दर्शाता है, कॉन्च ऑफ द कॉन्च सेल ब्रेकिंग। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मे रिमेंबर, यू मे नोट डाउन, और यू मे आस्क मी टू शेयर दीज पीडीएफ्स रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स। अगर आप वो नोट्स खरीदते हैं तो ये सभी पीडीएफ जो एमसीक्यूज के हैं आपको फ्री में अवेलेबल कराई जाएंगी। एंड और काफ़ी नॉमिनल फीस है, 350 ओनली। Next question, what event causes the boys to cry at the end of the novel? The arrival of Aesop, the death of Raph, the end of innocence, and their descent into savagery, the reunion with their families. So option B correct है, the end of innocence and their descent into savagery. Next question देख लेते हैं, what is the reaction of the British naval officer when he sees the boys' behavior on the island? जब वो ऑफिसर आता है देखता है तो लड़कों को, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? ही इज इंडिफरेंट एंड लीव्स इमीडिएटली, ही इज मूव्ड एंड ए लिटिल embarrassed, he punishes them for their actions, he is angry and scolds the boys harshly। ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ लॉर्ड ऑफ लाइज। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। I think these are the repetition of questions. So we have discussed around 20 questions. We will stop here. We will discuss more question in our next video. Till then, you can watch more videos on our channel. There is a playlist named UPHS English Revision and UPHS English. You can uh, access both playlists and you can watch videos. There are many videos relevant to the topics of UPHS English. Thank you.